I would like to request our Chief Guest, Honorable Minister of Education, Labour and Employment, Government of Manipur, to address the gathering. About the Honorable Minister of Education, he was elected to the Manipur Legislative Assembly from Herok in the 2017 Manipur Legislative Assembly election as a member of the Bharatiya Janata Party. He is an ex-IPS officer. So please kindly come on. सबको नमस्कार, pranam and khurumzari. I'm very grateful to the organizers and I thank the organizers for organizing such kind of event. I had a dream after I became a minister and the dream has been realized today. I wanted to organize a conference in Manipur for the students of the Northeast who are in the school level. But last 2.5 years I could not. But today, by the grace of God and by the initiative of the organizers and the Science and Technology Department, Government of India, my dream has been realized and I thank once more for that. I welcome all the students and teachers from the Northeast. You have to smile. There are thousands of languages spoken in the world, but only one language can understand all the languages. That is a smile. आप लोग सब ऐसा मुंह टेढ़ा करके बैठा है. Why is it? You should enjoy. It is a festival. Enjoy. We are a smile. You are our future. Why we are here? Is because we wanted to ignite you. We wanted to inspire you, and we want you to make change. Make things happen, positive things happen in this country, great country called Bharat. You are going to be nation builders. That is why I think the very purpose is to make India a better place, great country, a superpower in all respects. So I start with small, सबको हंसाना है, सब तो मुंह टेढ़ा करके बैठा है, तो एक कहानी बताता हूँ. I am very much interested in education. Nobody wants to hold the portfolio of education, but I opted with the grace of all my supporters. Education बोलता है ये महासागर है, महासागर है, सागर है, महासागर, महासागर of problems, समस्या का महासागर. And in Manipur, almost 99% of the ministers who were holding the portfolio of education never comes back in the next election. And I never know whether I'll come back again or not. Anyway, Swami, first of all, I salute all the great scientists of the world and particularly the Indian scientists who have made our lives better and also who have made our country better and who have made the world a better place. I salute to them. स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोला था कि our lives become more meaningful when we realize the fact that every moment is not going to, the same moment is not going to come back twice. जिंदगी में जैसा मुझे बोला जाए कि you can start rewind your life again, I think I can do wonders, but it's not going to happen. जो आज आप लोग यहाँ हैं दोबारा नहीं आएगा, कल जो होगा वो भी नहीं आएगा. तो every moment is very important. Please utilize it, enjoy it, play it, sing it, learn it, study it, and you enjoy it. Every moment. And this moment is very important. जो अरुणाचल से आए, असम से आए, मणिपुर से आए, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जितना हमारा नॉर्थ ईस्ट के जितना लोग आए हैं, you see, you are our future. But फ्यूचर ये बोल के आप मुंह टेढ़ा करके बैठने से कुछ नहीं होने वाला है. आप हंसिए, एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए, एंड लेट अस मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस. सबको हंसाने के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ. स्कूल में, एक स्कूल में क्लास 5 तक का है, प्राइमरी स्कूल में, एक टीचर ने मैथ्स का एक क्लास ले रहा था. तो एक स्टूडेंट को पूछा कि देखो डेविड, आपका बैग में मैंने 2 एप्पल डाला, 2 और एप्पल डाला, तो आपका बैग में कितना एप्पल होगा?
How many apples you will have if I put 2 apples and another 2 apples? How many apples are there in your bag? David says, Sir, 5 apples. How? I have put 2 and 2. How can it be 5? If I take out 2 apples, how many apples will be there in your bag? 3 apples, sir. Okay. If I put 2 mangoes, 2 मैंगो डाला आपका बैग में, 2 और डाला तो कितना मैंगो होगा? डेविड बोला 4 सर. 2 निकालने से 2. अच्छा, तो टीचर ने क्या किया? दूसरा स्टूडेंट को पूछा. नेक्स्ट स्टूडेंट बोला सर उनका जवाब गलत है. 2 एप्पल डालेगा, 2 और डालेगा, 4 ही रहेगा. 2 निकालेगा 2 रहेगा. एप्पल हो, आम हो, जो भी हो, 4 ही रहेगा. तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसको गाली दे दिया. देन क्लास वॉज ओवर. द टीचर वॉज नॉट वेरी हैप्पी. इतना पढ़ाने के बाद में भी ये समझ में नहीं आता ना, आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाता है. इज नॉट सो. he called Mr. David and asked why you gave wrong answer. तो डेविड ने बोला सर आप तो सुनते नहीं है, हमको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम देता नहीं है. हमारा बैग में मम्मी ने ऑलरेडी 1 एप्पल डाला था. तो आप so all the teachers, the parents, we don't allow the students, our children to explain. We don't listen. We only expect what we want. वो नहीं होता है. That is how we spoil our children. We are making them pressure cookers. वो नहीं होना चाहिए. The teachers, the parents, the first school is the family. The first primary most school is family, and the first teacher is the parents. और हम लोग क्या करते हैं? जब बच्चों को 11 महीना तक कुछ नहीं बताता है, अपने आप खेलते रहेगा. देखिए आप दर्द हो गया, भूख लग गया तो बच्चा रोएगा. वी डोंट टीच. आपको दर्द लगेगा या भूख लगेगा तो आपको रोना है बोल के डू वी टीच? हम सिखाते हैं क्या? नहीं, हम नहीं सिखाते. सीख जाता है. फिर आपका पेट बढ़ गया, खुश है तो हम हंसता है. डू वी टीच देम? दुख होने से रोता है, क्राई विल क्राई. और वेट हो गया, बेड में वेट हो गया तो पेशाब कर दिया तो रोएगा. तो वी डोंट टीच. बट मेनी थिंग्स learning is independent of teaching. They may learn what you teach. Many of them they learn without whatever you don't teach also. So we should not force children to learn what we teach. Let them also explore. Let them learn. But हम क्या करते हैं as a parent? I'm also at default. I must admit to all of you, all the young people, and ask for forgiveness. I must say sorry to you all, because as Jain ji bola, you see, my children are two of my children are studying in Delhi, in Noida. They could not go out. They could not breathe. That is how we spoil the environment. We have destroyed. We have damaged. उसके लिए हम जिम्मेदारी है. So why you are today is, we think. हम क्या सोचते हैं? संसार जो है हमारा है. We think, we feel, we act as if the world, the universe is owned by us, the human beings, the elder people. हम सोचते हैं ये संसार जो है हमारा है, पृथ्वी जो है हमारा है. नहीं है. इसमें the plants are there, the trees are there, water is there, lakes are there, rivers are there, hills are there, mountains are there, animals are there. It is for all of us, not for only for us. That is why we kept sustainable development, preservation of biodiversity. Everyone, हम घर बनाते हैं हमारा मणिपुर में, मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन, बट मैं हिंदू फैमिली में बिलोंग करता हूँ. तो हम लोग जब घर बनाना होगा तो हमारा जो जमीन है, when we have to construct a house, a building, हम पूजा करते हैं. क्यों? जितना जो जमीन में जो जीव जंतु रहते हैं, जो प्लांट हमने काटा है, और जो जीव जंतु जो रहते हैं, सांप होगा, मेंढक होगा, जो भी रहता है, उनका जगह में हम वी आर थ्रोइंग देम आउट, आस्किंग देम टू गो आउट, डिस्टर्बिंग. सो हम पूजा करते हैं, उनको अच्छा जगह दे, हमको भी वो दे. सो बिकॉज इट implies, signifies that the world, the earth, the water, the river, nothing belongs to us. It is for all of us.
जब ये सोच आएगा तो जितना भी आप बोल रहे हैं ना ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम डेवलप अपने लिए करेंगे, लेकिन जो आने वाला पीढ़ियों के लिए, पीपल हु आर गोइंग टू कम, उनके लिए हम नहीं रखेंगे। कल को इफ टुमारो द सन डजंट कम आउट, व्हाट हैपेंस? इफ द सन डजंट कम आउट, सन का लाइट खत्म हो गया, नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? पानी नहीं मिल रहा है, फॉर ईयर्स टुगेदर नो रेन्स एंड देयर इज नो वाटर, व्हाट विल हैपन टू अस? सो दिस कॉन्फ्रेंस, आई थिंक it is very important. We must think for our future. एक बार स्वामी जी, जब when Swami Vivekananda was a very small student in a young class, Guruji मतलब पढ़ाते गया, he kept on teaching and teaching and teaching. He was telling so many things which the students did not like. Reasoning ठीक नहीं था, तो एक बार पीछे से खड़ा होकर हाथ उठा के पूछा, गुरुजी मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, पूछो, यू कैन आस्क। बोला है कि गुरुजी अंधेरा नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? इज देयर एनीथिंग कॉल्ड डार्कनेस? तो हाँ क्यों नहीं, रात को अंधेरा होता है, व्हाई नॉट? इन द नाइट इट इज डार्क। फिर आपका जवाब गलत है, यू आर रॉन्ग। फिर सेकेंड सवाल, दूसरा सवाल पूछा उनको कि गुरुजी is there anything called जो खराब आदमी, bad person है क्या? is there anything called negativity? खराब चीज नाम का कोई चीज है क्या? क्यों नहीं? there are so many bad people, खराब चीज होते रहता है, खराब चीज मिलता है, नहीं वो भी गलत है। तो आप जवाब दो। he said there is nothing called darkness, it is simply absence of light. there is nothing called negativity, it is simply absence of positivity. So why we are here? We have to remove the darkness, especially within ourselves. हमारा बाहर में तो हम बहुत लाइट उजाला दिखा रहा है, लेकिन हमारा अंदर जो है ना बहुत डार्क है। We are always negative. सब हमारा दोस्त अच्छा काम कर रहा है तो हम अच्छा है बोल नहीं सकता है, एक अच्छा आदमी अच्छा काम करे वो तेज से भाग रहा है तो तेज भाग रहा है नहीं बोल सकते हम। We are so jealous में, हम लोग नेगेटिविटी, सो वी मस्ट रिमूव एवरीथिंग। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब आ जाएगा बाद में। नाउ हमारे एजुकेशन में, बीइंग द एजुकेशन मिनिस्टर, आई एम नॉट हियर एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, आई एम हियर एज ए सिंपल सिटीजन एंड ऑल्सो ए स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम यू। जितना सवाल पूछना है यू हैव टू आस्क। अभी तो एक्सपर्ट रहेंगे आपके साथ, उनको पूछना है जो भी खाना खाने के समय में, ब्रेकफास्ट के समय, यहाँ बैठने के समय, you have to keep asking why it is happening, how it is happening, when it is happening, what has been happening, where it has been happening. You keep asking, then you find answers and you can make this place better place. नहीं आप नहीं पूछेंगे तो कुछ नहीं पाने वाला नहीं है। अभी क्या है, कट एंड पेस्ट वाला वो चीज़ आपको मार्क मिलने के लिए वो वाला नहीं जाना है। तो एजुकेशन में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, किसके लिए यूज़ करेंगे? There are three types of people, three categories of people in the world. If we take change as a reference, पृथ्वी में, हमारा संसार में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, nothing is permanent. Only one thing is permanent, that is change, बदलाव। बदलाव को आप नहीं रुक सकता है। Will age, हम बूढ़ा हो जाएगा, हम मर जाएंगे, चेंज होते रहेगा, चेंज कैन नॉट बी स्टॉप्ड। सो चेंज को आप रेफरेंस पॉइंट लेके आदमी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है। हम आपको पूछेंगे आप कौन सा कैटेगरी में आना चाहता है क्या? फर्स्ट कैटेगरी इज पीपल हु मेक थिंग्स हैपन, लाइक महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंदा, सीवी रमन, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी जी, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, they have made things happen, like your teachers here, your parents. There are people who simply looks at the things happening. One group is people who makes things happen. Another group is people who watch things happening. The third category is there are people who even do not know what is going on, what is happening. So which category do you want to fall in? आप बोलिए कौन सा कैटेगरी में आप? Do you want to make things happen, or you simply want to watch things happening, or you want to remain without knowing what is happening around? आप बताइए।
Anyone? Yes? या जोर से बोलिए. आप नोटिस किया है तो बंद पूरा निकाल के जोश के साथ बोलिए. Very good. You have to make things happen to make the country greater country, the superpower, and make the world a better place, our country a better place. और एक है इंटेलिजेंस का हिसाब से और भी 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकता है. नंबर 1, फर्स्ट कैटेगरी वुड बी पीपल हु मेक्स मिस्टेक्स. गलती करता, अपना गलती से सीखता है. पीपल मेक्स मिस्टेक एंड दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. दिस फर्स्ट कैटेगरी. सेकेंड वन इज पीपल हु मेक्स मिस्टेक. गलती करता है लेकिन उससे लर्न. Makes mistake, doesn't learn from the mistake. The third category is people who never makes mistake. See people making mistakes and they don't make mistakes. The most intelligent people, the last one. People who makes mistakes, गलती करता है, सीखता है उस गलती से. People who makes mistake and who doesn't learn, learns from the mistakes. People who doesn't make any mistake but keeps learning from the mistakes of others. तो आप कौन सा कैटेगरी में फिर आना चाहता है? लास्ट वन. फर्स्ट एंड लास्ट. वेरी गुड. सो यू सी एजुकेशन. व्हाई वी आर हियर, व्हाई वी आर एजुकेटिंग पीपल. वी वांट टू, व्हाई वी आर हियर इज टू इग्नाइट योर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल. हमारा जो इंसान है ना, इसमें 4 भाग होता है. एक होता है बॉडी, एक होता है माइंड, एक होता है इंटेलेक्ट, चौथा होता है सोल, स्पिरिचुअलिटी. सबको इग्नाइट करना है. इग्नाइट करके इंस्पायर करना, उसके बदलाव लाना है. कैसा बदलाव? नॉट नेगेटिव चेंज बट पॉजिटिव चेंज. एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें ले जाना है. यू सी, अभी आप सोचिए फ्यूचर में वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्टेलिटी. कैन वी बिकम इमॉर्टल? हम हमेशा पूछते रहता है हम अपने आप को. आई कीप आस्किंग माई सेल्फ, अरे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, हमारा बच्चा बड़ा होगा, वो क्या होगा, कैसा होगा, रास्ता कैसा होगा, गाड़ी कैसा होंगे, हवा कैसा आएगा, ये कैसा. आई कीप आस्किंग एंड ऑल ऑफ यू, आई थिंक यू ऑल्सो मस्ट बी आस्किंग व्हाट विल बी आवर फ्यूचर. हमारा फ्यूचर क्या होगा और फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको मालूम नहीं. देयर इज वन क्वेश्चन आई कीप आस्किंग. दूसरा, ये इंसान जो है कभी भी नहीं मरने से कैसा इतना अच्छा होना था. इफ आई डोंट डाई एट ऑल, क्या होगा, कैसा, आई डोंट वांट टू डाई, पर कैसा करने से हम नहीं मरेंगे, ये पूछते रहता है. तो इफ यू डू रिसर्च, अभी देखिए 1800 से 1900 तक में लाइफ स्पान नॉर्मल, मतलब एवरेज लाइफ स्पान हमारा जिंदगी को जो है 38 to 40 का. 2000 के बाद 60-70. We can live maybe for 500 to 1000 years. You never know. We may be unfortunate, unlucky lot. आप लोग रिसर्च करेंगे तो ये हो सकता है कि आप नहीं भी मर सकता है. Who knows? You do. अभी तो मेंशन किया था नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो चिप्स डाल देगा, आपका स्किन, आपका हार्ट सब बदल देगा. Then you may live for maybe 10,000 years. You never know. But if you keep living, हमारा ये पृथ्वी में रहने का जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? How you live? So you keep asking. You have to. So when we do something, science and technology जो भी है, क्या करना है? We have to able to ignite the minds, body and intellect and soul of the human beings, the young people here. Should be able to ignite. वो यूज नहीं करेगा. And many of the schools, many of the schools, the teachers, what they do, they make the class so monotonous, so boring. सेम थिंग वो बताते जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर? थोड़ा हाथ उठाइए तो कितना टीचर्स है यहाँ पे? एक दो, बहुत लोग हैं. आपको आई कंग्रेचुलेट यू. व्हाई वी आर टुडे, व्हाई आई एम हियर स्टैंडिंग टुडे, जो कुछ भी थोड़ा सा हम बोल पा रहे हैं, ये आपका वजह से है. आई वॉज टॉट, आई वॉज गाइडेड बाई पीपल, मेंटोर्ड बाई पीपल लाइक यू. दैट इज व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे. सो आई थैंक यू एंड आई कंग्रेचुलेट. बट यू हैव टू डू मोर. पीपल लाइक यू हैव टू गाइड देम, मेंटोर देम. एक मैं यहाँ एक लिख के आया था, व्हाट
there is one person called Plutarch. He is the father of biography. He's a very famous person. He once said, the mind is not a vessel, container. Our mind is not a container that needs filling, इसमें भरने के लिए, but wood that needs igniting. लकड़ी है जलाने के लिए. हम लोग क्या करते हैं? Parents and the teachers, what we do? We think the young children or students are like empty baskets. उसको डालते जाओ. वो नहीं, empty basket नहीं. Ours is educare. Latin word, educare. Edu means bring out. Already, if you want to plant a tree, आप आम का पेड़ लगाना है. वो लंबा तो नहीं बोल रहे. Can I continue? आप आम का पेड़ लगाए. For example, you plant a tree, आम का. उसमें आम को गार्डनर का काम बनता है. आम को नहीं बोलेगा आप इतना बड़ा करना है, ऐसा ब्रांच ऐसा लाना है, फल इतना साल में फल आना है बोल के. You don't tell. Your job as a gardener is उसको अच्छा जगह में डालना है, आम को उसमें पानी डालना है, मैन्योर देना है. जब गाय और खाने के लिए गाय भैंस आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है, कीड़ा और आ रहा है उसको वो संभालना है. तो it will grow and bear fruits. Already in that small seed of mango, everything, the tree, whole tree is there, root is there, the फल भी है उसमें, सब कुछ है, अपने आप आ जाएगा. लेकिन आपका काम है पानी डालना, मैन्योर देना, उसको प्रोटेक्शन देना, फेंसिंग करना. लेकिन हम क्या करता है? ऑलरेडी इन दैट चाइल्ड एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर. आवर जॉब इज टू ब्रिंग आउट व्हाट इज देयर इनसाइड द चाइल्ड एज ए पेरेंट, एज ए टीचर. पर हम क्या करते हैं? उसको दबा के रखना है, हम डालते जाने हैं, हम जो चाहते हैं वो डालते जाने. एंड दैट इज हाउ वी स्पॉइल आवर यंग माइंड्स हु आर टैलेंटेड. दे आर ऑल अल्बर्ट आइंस्टाइन्स, दे आर ऑल टेस्लास, दे आर ऑल न्यूटन्स, they are all Elon Musk. It is how we spoil. They can become, they can bring change, they can invent, they can discover. But the thing is, we don't allow them. We train them we tune them, we ask them to get a job, which is not correct. They have to become job providers, not job seekers. But the thing is, हम क्या करता है? आप IAS बनना है, आपको IPS बनना है, आप कांस्टेबल बनना है, आपको वो बनना है, ये बनना है, वो बनना है, बस. And in every 1.5 hour in India, every 1.5 hour in India, a young student, boy or girl, commits suicide of academic pressure. इतना प्रेशर डालता है, टॉपर नहीं आया गाली देता है. माँ बाप, टीचर, हमारे स्कूल के बदनाम कर दिया, आप टॉपर आना था, हार्ड वर्क नहीं किया, तो goes back and commits suicide. So, are we here to guide them to use science and technology, to develop them, to make them wonderful people, or are we here to make them pressure cookers and spoil their lives? So my request, my appeal to people who are working in the field of education, the teachers, the parents, let us become gardeners. Let us manure them. Let us plant them in proper area, proper place. Let us clean the environment. खराब जगह में आप प्लान कर देगा, ग्रो नहीं करेगा. खराब एरिया means you see, if you spoil the environment, the children are not able to go to school, are not able to play, because इतना पोल्यूशन हो गया दिल्ली में. बाहर नहीं, आप सांस नहीं ले सकता है, कैसा करेगा? पानी नहीं पी सकता है, तो पानी में तैरना, we actually learn how to swim in the river and in the pond. Now I can swim anywhere. If I am thrown anywhere, I can swim. That is how I learned. That is my education. But आजकल बच्चा लोग नदी में जाना डरता है, पोन में, तालाब में जाना डरता है, इतना गंदा है, वो कैसा तैरेगा? How they will learn? So now, as a parent, as a teacher, we have to clean the environment. We have to teach them how to keep the environment clean and how to have a good relationship with environment. यूँ से हमारा गुरुकुल सिस्टम में, स्वामी जी भी इधर है, गुरुकुल सिस्टम इज़ द बेस्ट फॉर्म एजुकेशन सिस्टम. वहाँ पे आई डिड सम स्टडीज, बाहर का क्या, तो वो दे आर ऑल्सो कमिंग डाउन टू आवर इंडियन एंशियन दिस फिलोसफी स्टाइल ऑफ एजुकेशन. वो दो बता रहे हैं. एक रिसर्च
we have to do research for teaching methods, best teaching method क्या क्या है वो करने के टेक्निक्स, उसके लिए रिसर्च. दूसरा क्या है, रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स. गुरु जी का जो गुरु शिष्य परंपरा, द रिलेशनशिप, आपका पैशन, आपका लव, प्यार, जो अपना बच्चा जैसा प्यार जो है वो अभी चला गया. द टीचर्स दे हैव टू हैव टू लव्स. वन लव, यू नो, प्यार, प्रेम, दो रहना चाहिए. एक है लव फॉर द सब्जेक्ट, love for the subject, passion for the subject, then love for the students, passion. अपना आप को बच्चा जैसा ट्रीट करेगा तो सब कुछ लर्निंग विल हैपन, मैक्सिमम लर्निंग विल हैपन. बट वो नहीं हो रहा है. गुरु शिष्य परंपरा में, हमारा गुरुकुल सिस्टम में क्या है, उसमें आपका आचार विचार व्यवहार, द टीचर इज द रोल मॉडल, सोल मॉडल. पूरा गुरु का मतलब कंप्लीट है. टीचर का अंदर में सब कुछ है. टीचर कैसा कंडक्ट करता है, कैसा व्यवहार करता है, डिसीजन कैसा लेते हैं, आइडियोलॉजी क्या है, ऑल दोस थिंग्स. लेकिन हम लोग आजकल स्कूल में इट हैज बिकम सो मैकेनिकल. सो आई समटाइम्स दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा इसको भी संभाल के वी हैव टू गो इन अ बैलेंस वे. इट माइट स्पॉइल द चिल्ड्रन ऑल्सो, द इन्वायरमेंट ऑल्सो. सो वी हैव टू अ लिटिल बिट केयरफुल. साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए, ये जब हम When I was studying at school, जब बच्चा था, रेडियो, ट्रांजिस्टर, रेडियो आप तो सुना होगा. रेडियो में रेडियो आता था, मर्फी फिलिप्स का एक आता था. रेडियो में हम सोचते थे रेडियो के अंदर छोटा सा आदमी होगा, रेडियो से कैसा आवाज़ आ रहा है. आई डिडंट नो, वो बच्चा है, वो हम पूछ रहे हैं उसमें बच्चा छोटा सा आदमी है क्या उसका अंदर में. तो एज वी ग्रो अप, तो रेडियो भी बदल गया. अभी रेडियो जो है, रेडियो में बोलने वाला आदमी हम देख सकता है, वो है टेलीविज़न. अभी रेडियो भी, टेलीविजन में सब कुछ इधर आ गया. देखो इसमें एवरीथिंग इज देयर. नाउ इट इज टेकिंग अवे द रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन, बिटवीन चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन, बिटवीन चिल्ड्रेन एंड सोसाइटी, बिटवीन चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, बिटवीन चिल्ड्रेन एंड टीचर, सब ले गया. इससे ज़्यादा प्यार हम भी नहीं करते. हम अपना बच्चा को इतना प्यार नहीं करता. हम ये अपना सिरहाने के नीचे भी रखता है, इधर करके हम रखते रहता है. बट आई डोंट गिव दैट मच लव टू माई चिल्ड्रन. इट हैज टेकन अवे. तो ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा, सब कुछ छिन जाएगा, तो फिर हमारा वैल्यू सिस्टम चला जाएगा, तो सब बर्बाद हो जाएगा. वैल्यू सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वैल्यू सिस्टम के साथ साथ इसको कैसा यूज़ करना है, कैसा करना है, ये सब कंट्रोल करके यूज़, नॉट एब्यूज और मिस यूज़. सो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, वी शुड बी एबल टू गाइड, mentor our children how to use the technology and science. You see, some people in the Western countries, when you go for summit, I attended many summits, they talk so much about the technology. But technology cannot substitute the teachers. But technology in the hands of great teachers can transform, can ignite, can inspire, and can change. So the teachers have to be great teachers, great people, to be able to handle the technology properly. With these few words, I love talking, but I don't want to talk more. With these few words, I congratulate and I thank the organizers, and also I wish you all the best, and I want you all to be great people. You please read books on Elon Musk, Steve Jobs, even Haldiram. हल्दीराम का कहानी पढ़िए, आप देखिए. टाटास का पढ़िए, रतन टाटा का कैसा. इफ यू रीड इट यू विल बी इंस्पायर्ड. आप करेंगे, यू कैन डू इट. इफ ए कैन डू इट, बी कैन ऑल्सो डू इट.